سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب، تحریک لبیک کے بعد آج جب دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے حالات جیسے عید قربان قریب قریب آ رہی ہے، اتنی شدید نفرت اور ایسی ایسی خطرناک پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں ایم ڈی او کے خلاف. کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ تحریک لبیک کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی، مگر ایسی چیزیں اب دوبارہ جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہیں؟ یہ مبارک صاحب، یہ اپنی ناکامی کا ماتم ہے کہ وہ کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ایم ڈی قربانیاں نہ کر سکیں عید الاضحیٰ کے اوپر، لیکن ہر سال بعد میں پتہ لگتا ہے جی ایم ڈی نے قربانیاں بھی کی اور کرنے میں کامیاب بھی ہوئے بعض لوگ. تو وہ جس طرز پر وہ تحریک چلاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہے، یا ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ہم تو ناکام ہو گئے، ہماری کوششوں نے اس طرح رنگ نہیں لایا. تو یہ اس قسم کی زیادہ وسعت کے ساتھ جو کام شروع کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تحریک لبیک والے جو میدان میں تھے تو ختم نبوت والے اس لحاظ سے خاموش تھے کہ چلو ہمارا کام دوسرے تحریک لبیک والے کر رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے تھے. تو وہ ذرا زیادہ اگریسو ہو کے اس میدان میں نکلے ہوئے تھے. تو اب تو ان پر پابندی لگ گئی کہ بھئی وہ پریکٹیکلی ایسا اقدامات نہیں اٹھا سکتے، یہ تحریک لبیک کا نام نہیں استعمال کر سکتے پابندی لگنے کے بعد. تو اب ہیں یہ دونوں ایک ہی اندر سے ایک ہی نیت کے لوگ ہیں. اور اب یہ ہے کہ بھئی دوبارہ تحریک نبوت والے جو ہے اپنے نام کے ساتھ دوبارہ میدان میں جو ہے وہ آشیش کا زیادہ نکلے ہوئے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی، اور حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. لیکن حکومت درد سری نہیں لیتی ایم ڈی او کی وجہ سے. جب بھی کوئی خلاف ایم ڈی او کا ایسا اقدام اٹھایا جائے وہ کل یہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ چلو وقت گزر جائے اس کے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خط لکھا ہے وہ ان کا خط جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پر لگا ہوا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا، ہر کوئی بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے. اور انہوں نے مریم جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو نام کھلا لیٹر جو ہے وہ لکھا ہے، اور اس میں ماضی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس کس موقع کے اوپر آپ نے کہاں کہاں ضلع میں کس کس شہر میں آپ نے ایم ڈی او کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی، یا اس میں انتظامیہ جو تھی وہ انوالو ہوئی اور انتظامیہ نے روک دیا. جو تنظیمیں یا جو مذہبی تنظیمیں یا سیاسی تنظیمیں ایم ڈی او کے خلاف اقدام اٹھاتی ہیں ان پر اتنے زیادہ انہوں نے انسسٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے حکومت سے پوچھا ہے کہ بھئی یہ ان ضلعوں کے اندر باقاعدہ آپ کی انتظامیہ نے ایم ڈی او کو نماز پڑھنے سے روکا. اور وہ بڑا تفصیلی خط ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس میں خبروں کی بے حرمتی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، آزادی اظہار کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جلسوں پر پابندی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا توجہ دلائی جا سکتی ہے جو یونیورسٹی نیشنل نے دلائی ہے. تو اگر اس کے بعد بھی حکومت پنجاب نہ ہلے یا موو نہ کرے، ان باتوں کو نہ روکے یا ان مولویوں کو پر گرفت نہ ڈالے، تو پھر سوائے افسوس کے ہم کیا کر سکتے ہیں. خصب حکومت پنجاب یا پاکستان کی گورنمنٹ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی. اب تو کھلی دھمکیاں دی جا رہی کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور اگر کسی نے ملتان شہر میں یہ قربانی کی یا نماز پڑھی تو ہمیں بتائیے. اور باقاعدہ طور پر اس پر ایک فورس تیار کی گئی ہے جو اس چیز کا جائزہ لے گی اور خیال رکھے گی اپنی عید پڑھے نہ پڑھے، اپنی قربانی کرے نہ کرے. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا اس وقت جہاد جو ہے یہ ایم ڈی او کو قربانی سے روکنا ہے. تو ایک طرف فورس کا اعلان کیا جا رہا ہے، ایک طرف ابھی آپ نے انسانی حقوق کے متعلق جو کچھ بتایا، تو پنجاب گورنمنٹ تو اس پر کچھ بھی نہیں بول رہی. پنجاب گورنمنٹ نہ بولے لیکن عملی اقدامات تو اٹھائے نا. ذمہ داری تو اس کی ہے، صوبہ تو اس کا ہے، حکومت تو وہ کر رہی ہے صوبے کے اندر. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب حکومت ضرور شور ڈالے یا ان لوگوں کو گرفتار کرے، ہاں ان لوگوں کے آگے دیوار ضرور کھڑی کرے تاکہ ایم ڈی کی جو جان و مال جو ہے وہ محفوظ رہے. اور ان کو جس طرح کا بھی بند، جیسا کہ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ جو احاطے کے اندر اپنے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں یا عبادت کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ عید کی عبادت ہے، وہ جو بھی عبادت ہے اس کی ان کو اجازت ملنی چاہیے. اس کے لیے
फोर्स जो पंजाब की हुकूमत के पास ऑलरेडी फोर्सेस काफी हैं, उन पंजाब की हुकूमत को ये इन फोर्सों को इस तक इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसका कानून इजाजत देता है पाकिस्तान के शहरी को, उसकी राह में जो रुकावट आएगी, जो रुकावट डालेगा, उसके खिलाफ इकदाम उठाए जाएंगे और उनको चाहे गिरफ्तार करना पड़े, चाहे उनको जेलों में डालना पड़े, चाहे उन पर मुकदमा बनाने पड़े। जब तक हुकूमत ये स्टेप नहीं उठाएगी उस वक्त तक ये तालिबान हो या तहरीक बैक हो या खत्म नबूवत हो, ये और ज्यादा जो है शेर होते रहेंगे। खासा भाई, इन्होंने अपनी बनाई है ये जो खत्म नबूवत वाले, इन्होंने अपनी फोर्स बनाई है कि अहमदियों पर नजर रखें। तो ये देखें इस किस्म की, क्योंकि खत्म नबूवत का माटो एक खास ताल्लुक रखता है अहमदियों के खिलाफ, इसलिए आपको ये फोर्स नजर आती है, अहमदियों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। वरना फोर्सेस सबने बनाई हुई है, चाहे वो जमात इस्लामी हो या दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं या आपके जमीयत जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत है, इनके पास छोटी फोर्स है। जब ये निकलते हैं अपनी फोर्स का इजहार के लिए तो वो हजारों में इनके पास भी कारकुन होते हैं। फोर्स तो सबने बना ली है और उसका मकसद ये होता है कि हुकूमत को अंडर प्रेशर लेके आना, हुकूमत को दबाव के नीचे लेके आना और हुकूमत के ऊपर जो है एक किस्म का ऐसा डेवलप कर दो प्रेशर के भाई अगर हुकूमत हमारी बात नहीं मानेगी तो ये हजारों जो सामने खड़े हुए फोर्स लिबासें पहन के और अपने वर्दियां पहन के डंडे पकड़ के ये हुकूमत के साथ टकरा जाएंगे। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं सकता। इनके पास मिसालें मौजूद है कि मुरीद के में जो कुछ हुआ रात को आधी रात के बाद जब फोर्स के साथ टकराए हैं तो 3 घंटे नहीं लगे, उन्होंने सड़कें साफ कर आगे दिखा दी, सब गायब हो गए। तो ये सिर्फ जरूरत की बात है। अगर पंजाब हुकूमत ने जरूरत दिखाना चाहे तो वो ये सारे मामले को एक रात या एक हफ्ते में हल कर सकती है, लेकिन मसला वही है कि अहमदियों की खातर कोई दरगसरी लेने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सियासी कारकुन हो चाहे वो हुकूमत का कारिंदा हो। हाँ साहब, आप देखते हैं कि इदारों में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनका तल्लुक ज़ाहिर है खत्म नबूवत से है और वो भी इनकी मदद करते होंगे इस मामलात में। देखिए ये तो हमेशा से हुआ है कि पाकिस्तान के जो सियासी पार्टियों के जो मेंबरान हैं वो जिंदगी तो सियासत पे नहीं बुला रहे ना, वो किसी न किसी अपने काम काज तो करते हैं, कहीं ना कहीं मुलाजमतें करते हैं और वहां पर उनका दायरा असर जो है यकीनन किसी न किसी पार्टी से साबित हो जाता है। जमात इस्लामी के जमाने में एक जमाने में तो बहुत ज्यादा इनकी बकायदा मुहिम के तहत इन्होंने अपने बंदे जो है वो भर्ती करवाए थे। खसूसन ज़िया-उल-हक के जमाने में बहुत ज्यादा लोगों को भर्ती करवाया गया था। वो फिर ज़ाहिर ज़ेर असर जो है वो बात चलती चली जाती है। तो इसलिए हर इदारे के अंदर, चाहे वो सिक्योरिटी का इदारा हो, चाहे वो हिफाजत का इदारा हो, चाहे वो मुकामी इंतजामिया हो, इन सब के अंदर तमाम सियासी पार्टियों ने, तमाम मजहबी जमातों ने अपने कारिंदे जो है घुसाए हुए हैं, जिनकी वजह से ही ये अपनी ज्यादा मामला जो है वो कामयाब हो जाते हैं करने में। हाँ सर, एक और इसका जो अहम मसला है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट हो या दूसरी जितने भी लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनमें से अगर कोई बात हक की कर भी देता है कि जनाब पिछले साल भी आपको पता ही है पार्लियामेंट में एक बंदे ने अगर बात कर भी दी थी तो उसके लिए मुसीबत बन जाती है। तो ये भी खौफ है कि जो लोग सियासतदान है उनको लालच भी होता है कि अगर हमने कुछ इस तरह का पंगा इनसे ले लिया तो हमारे वोट भी चले जाएंगे। देखिए जी, बातों से डरते हैं तो फिर सियासत तो की जाती है मुल्क को आगे ले जाने के लिए, मुल्क की खिदमत करने के लिए, शहरियों के हकूक की हिफाजत के लिए सियासत की जाती है। सियासी पार्टियों का वजूद जो होता है वो मुल्क के शहरियों के हकूक की हिफाजत के लिए किया जाता है। अगर इन बातों से डरना है तो फिर वो सियासतदान नहीं, वो खुदगर्ज लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर दाखिल हुए हुए हैं। हाँ सर, एक और बड़ा खुलकर आजकल सामने पोस्टें लगाई जा रही हैं, उसमें लिखा जा रहा है कि ये जी कादियानी जो है ये मुल्क के गद्दार है और इतनी ज्यादा मेरी नजर से वो पोस्टें गुजरी, पता नहीं इनके बकायदा लोग बैठे हुए हैं इस काम के लिए। नहीं, ये तो शुरू, ये गद्दारी का इल्जाम तो शुरू से लगता चला आ रहा है। जब से 53 की वो मुहिम चली थी उसके बाद से ये मुस्तकिल एक नारा चला जाता है। अगर प्रूफ किसी के पास भी नहीं है, अगर प्रूफ है तो क्यों नहीं अदालतों के अंदर जाकर दरवाजे खटखटाते कि भाई ये गद्दार है। तो बात यही है कि बस एक ऐसा
नारा मार्केट में रखना है जिससे लोगों को, जाहिल लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके अंदर स्टार पैदा करवाया जाए। इसलिए किसी ने ये पूछा तो है नहीं कि भाई आप तो इतनी बड़ी बात इल्जाम लगाकर इसकी कम्युनिटी के ऊपर लगा रहे हो, तो क्यों आप इसका कोई सबूत भी मुहैया करो, या आप अदालतों में क्यों नहीं जाते? ये तो किसी ने कहना नहीं। इसलिए ये कि भाई एक ऐसा नारा चला दो जो जिससे लोग जो है वो उनके घर इकट्ठे होते रहे। लेकिन ये दुनिया गवाह है इस बात की, हुकूमत गवाह है, हुकूमत की एजेंसियां गवाह है, जो हर एक पर निगाह रखती है, जो खाली एमयू पर निगाह नहीं रखती, हर पाकिस्तान की सियासी जमात और मजहबी जमात के ऊपर निगाह रखती है। वो ये सब जानती है कि कौन गद्दार है कौन नहीं गद्दार। अच्छा, हेमेंटी फर्स्ट का मैं कल देख रहा था, बड़ा जबरदस्त उन्होंने जी सिस्टम चलाया हुआ है कुर्बानी के लिए, और वहाँ पे मेरा ख्याल आप मजीद मालूमात उनसे ले सकते हैं, और बड़ा महफूज तरीका भी है। खान साहब, क्या देखते हैं, कुछ केस सामने आएंगे पाकिस्तान में ऐसे कि कोई पकड़ दकड़ होगी? देखिए, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, लाजमी बात है कि भाई वो जहाँ पर पुलिस कमजोरी दिखाएगी वहां की मजलिस तहफ़्फ़ुज़ कामयाब हो जाएगी लोगों को इस बात पे कि मना कर दे कि आप ईद ना पड़े या आप कुर्बानी ना करें। तो जहां जरा पुलिस थोड़ी सी स्ट्रांग होगी और इनको दबाने की कोशिश करेगी या इनकी बात पे अमल नहीं करेगी, तो वहाँ हो सकता है कि आरएम भी मिलकर नमाजें वगैरह पढ़ लें, यही पढ़ ले। लेकिन ये कि भाई पैरेलल कुछ ना कुछ मुकदमा हर साल बनते हैं, इस साल भी लोग कामयाब हो जाएंगे, कोई ना कोई जिनकी बात सुन ली जाएगी, FIR वगैरह कटवाने में कामयाब हो जाएंगे। एक्शन कोई होगा कि ये नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन FIR कटवाने में भारी कामयाब हो जाते हैं। हाँ सर, पहले तो होता था कि जी आप हमारे टाइम पे नमाज नहीं पढ़ सकते, फर्ज करे 10 बजे ईद की नमाज पढ़ते हैं तो आप इस वक्त ये वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो कहते जी आपने पढ़नी ही नहीं है। देखिए, बेसिकली ये गलत मुतालबा है जिसके आगे हुकूमत को नहीं झुकना चाहिए। नमाज, मेरी नमाज का टाइम किसी दूसरे ने मुकर्रर नहीं करना, मैं किसी को इबादत करूं किसी को ना करूं। आप अपनी इबादत का टाइम मुकर्रर करें और उसके बाद उस इबादत को करने के बाद आपको दूसरों की इबादत को फजलंदाजी के लिए ना सोचना चाहिए, ना उनमें कोई अमल डालना चाहिए। बेसिकली तो ये है जो, लेकिन ये कि भाई क्योंकि ज्यादातर वो हमारे उलमा जाहिल तबके को साथ लगा के शोर वगैरह डालने में कामयाब हो जाते हैं, इसलिए अगर हुकूमत चाहे तो इनको धमका सकती है, इनके साथ वो कर सकती है, लेकिन हुकूमत को नरमी दिखा देती है। जैसा कि खुशाब में या कहीं ये जोराबाद में कहीं ऐसा हुआ था कि मुआयना करवा दिया था कि आप 1 बजे जुमे की नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, और एक जुमे का टाइम जो होता है वो 12 से लेकर 1:30 बजे तक होता है, तो 1:30 बजे के बाद पढ़ ले। इस किस्म की कमजोरियां कौमी दिखाती है, तो फिर ये लोग शेर हो जाते हैं। अगर इन्हीं को इस बात की तरफ ठोस मतलब बुनियाद को ऊपर बात करें कि भाई किसी की इबादत का टाइम हमने मुकर्रर नहीं करना, उन्होंने खुद मुकर्रर करने को जिसको इबादत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइन में इसकी इजाजत है, किसी खिलाफ को आइन की खिलाफ वर्जी इससे नहीं होती, जो अपनी मजहब के मुताबिक या अपने तरीके के मुताबिक जिस टाइम चाहे वो इबादत करे। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी को कमजोरी दिखा देती है, इसलिए ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। हाँ साहब, आखिर पे ये बताइए, फील्ड मार्शल साहब ईरान के दौरे पे हैं, कोई रिजल्ट निकलेगा? देखिए, कोशिश तो हो रही है, जो अमेरिका ने नई तजावीज दी है ईरान को, अब उस ईरान पे क्योंकि बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप ईरान चलता है, सोच समझ के चलता है, तो इसलिए बहरहाल फील्ड मार्शल साहब का दौरा कहा यही जा रहा है कि इसीलिए क्या है कि वो ईरान को उसकी तरफ मतलब कायल करना चाहते हैं कि जो अमेरिकन की तजावीज है उनमें ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश पैदा की जाए। लेकिन ईरान की बात, ये मौकफ दुरुस्त है अब उनके अपने मुल्क के लिए कि भाई वो जो यूरेनियम की अफजाइश हो चुकी है उसको वो किसी के हवाले करने या ज़ाया करने पर तैयार है, लेकिन सिविल जरूरत के लिए उनको यूरेनियम की पाबंदी लगनी उनके ऊपर गलत है, उसके लिए वो तैयार नहीं है, ना आज तैयार है, ना बाजार ये नजर आता है कि आइंदा तैयार होंगे। अब फील्ड मार्शल साहब किन बातों पर उनको राजी करें ये तो हमें नहीं पता, ना ये इंटरनेशनल प्रेस में भी ये बात आ रही है, लेकिन बहरहाल बहुत ही ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत ही समझदार तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, और किसी किस्म की जिसे कहते हैं अमेरिकन दबाव जो है वो
लेने के लिए तैयार नहीं है। जी। और यही वजह है कि जो ट्रम्प साहब की जो फौजी कामयाबी है, तो वो फौजी कामयाबी तो बम बरसाने से हासिल हो जाती है, लेकिन असल मैदान जो है वो सियासी फतह होती है कि सियासत के अंदर जो कुछ जिसके लिए बम बरसाए गए वो चीज आपने हासिल कर ली। वो सारी दुनिया कह रही है कि ट्रम्प साहब की जो फौजी कामयाबी है वो सियासी फतह में तब्दील करने में वो नाकाम दिखाई देते हैं। और ईरान जो है वो अमरीकी दबाव को बर्दाश्त करने में और तनाज़े का जो तवील अरसे तक जारी रखने की जो है वो सलाहियत रखता है। इसलिए इस जो अपने अमेरिका साहब ट्रम्प साहब हैं उन्हीं को ये खिफत उठानी पड़ेगी और किसी न किसी स्टेज पे जो है वो ईरान जो है वो कामयाब हो जाएगा और उसको ज्यादा सपोर्ट जो अब मिल रही है वो जो नई तजवीज़ सऊदी अरब ने दी हुई है, जो हेलसिंकी का वायदा था, उसके तहत कि भाई हम अब मुसलमान ममालिक अपना मसला खुद हल करेंगे, दूसरी पार्टियां उसके अंदर ना हो, उसको काफी मकबूलियत हासिल हुई है। इसके अंदर इजिप्ट भी काफी एक्टिव है और टर्की भी काफी एक्टिव है। पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल उस तरीक पर उसमें नहीं आ रहा है जिस तरीके पर वो बहरहाल ईरान की और अमेरिका की तरफ के तनाज़ा में पाकिस्तान की तवज्जो ज्यादा है तो वहां उसको बहरहाल एक सालिस का किरदार जो है मिल रहा है। लेकिन दुनिया जो है वो सपोर्ट कर रही है सऊदी अरब के इस नई तजवीज़ को। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, मैं हर प्रोग्राम के आखिर पे ये ज़रूर आपको बताता हूँ, खासकर जो अहमदी पाकिस्तान में रहते हैं, कि एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात कहीं भी आप चले जाएं, अगर किसी को कचहरी का या हॉस्पिटल का चक्कर पड़ जाए तो बस फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या भाव वहाँ पे बिकती है। और रास्ते हम हर प्रोग्राम बताते रहते हैं, आपको भी पता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें।